Ever wondered how much safer your work at height operations could be? Imagine a world where every potential hazard is detected before it becomes a problem. Meet Tracker AI's smart PTZ camera system. This isn't just any camera, it's a game changer in work at height safety. Safety is paramount, right? It's the foundation of a productive and happy workforce. Despite stringent regulations, accidents still happen. Traditional methods often fall short in preventing these incidents. Enter Tracker AI's smart PTZ. This advanced system is designed to fill the gaps left by outdated safety measures. Tracker smart PTZ cameras deliver unmatched oversight so you can spot hazards before they become accidents. Offering 24/7 monitoring, it detects work at height safety hazards instantly, no matter the time of day or night. Think about it. Real-time monitoring, automated alerts and even fall detection. It's like having a safety manager who never blinks. Real-time alerts trigger immediate action, ensuring that potential dangers are addressed before they escalate. Automated surveillance significantly reduces human error, making your work site safer and more efficient. It even detects PPE and welding work compliance, ensuring that all workers are properly equipped. Ensure every worker goes home safe. That's the ultimate goal, isn't it? Ready to elevate safety? Stay safe, stay smart. With Tracker AI, you're not just upgrading your equipment, you're upgrading your entire safety culture. The Tracker Smart PTZ camera features advanced AI algorithms that are constantly learning and adapting to new safety challenges. With 360-degree rotation and high-definition video, it covers every angle, leaving no blind spots. You can decide which areas to cover, what to detect in each area through a simple online procedure without ever leaving your seat. Through the setup, you can monitor what is happening on the ground in real time remotely. In a recent case study, a manufacturing plant reduced accidents by 40% after implementing our system. Features include night vision, advanced monitoring for PPEs, work at height and welding activities, including real-time analytics, making it a comprehensive safety solution. Our team of experts ensures the highest quality and reliability, constantly innovating to meet your safety needs. Plus, our dedicated support team is here to assist you 24/7, ensuring that you get the most out of your investment. Join the revolution in safety with Tracker AI's smart PTZ camera system. It's time to take your safety measures to the next level. Visit tracker.live to learn more and get started today. Together, we can create a safer, smarter future for everyone. Welcome to another episode of Hackla Podcast. In today's episode, we will explore one of the most critical aspects of workplace safety, which is working at height. Despite advancements in technology and awareness, fall from height continue to be the leading cause of workplace injuries and fatalities across industries. But the solution lies not only in equipment or compliance, but it actually lies in culture, leadership, and consistent awareness. Joining me today is Mr. Sachin Patel, lead workplace safety and ISO audit expert with over 18 years of experience in chemical manufacturing sector. Sachin has dedicated his career to building safer, smarter, and compliant workplaces, turning safety from a checklist into a true zero harm culture. Together, we will discuss the challenges, best practices, and the future of of safety at height in industrial environments. Thank you, Sachin, for joining us today. Thanks, Amber. To start our conversation, I would request you to introduce yourself for our audience. Yes, thanks a lot. Now, this is my third podcast with you, and probably most of the viewers are know, but again, it's I will explain few things from my side. So, I have total 20 years experience in EHS for India and Middle East. I have did my BSc Fire, then Advanced Diploma Industrial Safety, then NIBOS IGC, NIBOS PSM, then post graduate diploma in Fire and Life Safety Audit, then MBA in Safety Management,
and another few multiple courses. Presently, I am pursuing for the Master of Science in Climate Change and Impact Management. Uh, this is and having I'm a certified fire safety officer for renewal of the fire safety certificate for in within the Gujarat as per the Gujarat Life Safety Prevention Rule. Mm-hmm. Presently, I am associated with the Sterling Biotech Limited as a senior manager EHS. I have worked in multiple industry like Oriental Aromatics, PI Industries, then GSP Crop Science, Vertela Specialty, Cambon Chemicals, and apart from this, I was with some third-party contract based during my initial careers, Tyco, General Motors, ABB, and I work in Middle East in McDermott Middle East and Al Masood Bargam. I work in construction safety, greenfield engineering, project, brownfield, and oil and gas EPCI, and since last 12 years with the chemical industries. And presently, I got opportunity to work in the pharmaceutical industry. Mm-hmm. Okay, so this is from my side. Okay. Over Great. to I mean, you. you have explored quite a lot of industries, and you have now a lot of experience under your belt. So I'm sure, the audience is very keen to listen to your thoughts. Okay, So yeah, let's get started. yes. Uh, what are the most common causes of accidents or near miss while working at height? First, starting with it's working at height. It's a critical high risk activity. So first is human factors. So error in judgment, like every person have some different uh, quality thinking of identifying risk and risk perceptions. So हर एक का अलग अलग नजरिया होता है. किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है, और कभी कभी रूटीन एक्टिविटी इतनी बार हो जाती है कि वो चीजें कुछ नॉर्मलाइज हो जाती है. तो वो चीज है. देन इनएडिक्वेट प्लानिंग, लाइक हाई रिस्क एक्टिविटी है, वो क्रिटिकल है, तो वी नीड टू हैव सम प्लान लाइक जॉब सेफ्टी एनालिसिस प्रायर टू स्टार्ट द वर्क. देन सेम जॉब सेफ्टी एनालिसिस हैज टू बी कम्युनिकेटेड विद इन द टीम, ताकि जो लोग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले हैं उनको भी पता रहे कि क्या हैजार्ड्स है और क्या हमको प्रिकॉशन लेने हैं. देन इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट हमने चूज किया है उसका कुछ फेलियर हो जाता है या तो फिर उसका मिसयूज होने से हो सकता है. देन इनसफिशिएंट कंपटेंसी, लाइक critical activity we need supervision, but for the supervision, supervisor also need some adequate knowledge of activity. तो सुपरवाइजर जो रहते हैं उनका भी कभी कभी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कम रहता है. हमको लगता है कि वो एक्टिविटी मॉनिटर कर पाएगा, बट समटाइम्स नहीं कर पाते हैं, तो ये भी हो सकता है. देन कम्युनिकेशंस, जो हमने जीएसए वो सब किया, कुछ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द एक्टिविटी भी जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी अगर कुछ गैप है, क्योंकि समटाइम्स कम्युनिकेशन मैं कुछ बोलते हैं, सामने वाला क्या समझता है वो भी एक मायने रखता है. तो ये भी एक गैप है, मेजर हैजार्ड्स. देन इनइफेक्टिव रेस्क्यू प्लान्स, हाई रिस्क क्रिटिकल एक्टिविटी है तो वी नीड टू हैव सम रेस्क्यू प्लान आल्सो इन प्लेस, बिकॉज इन केस अगर हाइट में कुछ इमरजेंसी हुई तो इमीडिएटली हम उसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, रेस्क्यू कैसे कर पाएंगे, ये भी जरूरी है. तो दिस आर द थिंग्स फ्रॉम माय साइड रिलेटेड टू द मेन एक्सीडेंटल कॉज एंड नियर मिस फॉर द वर्किंग एट हाइट्स. Right, Sachin. So, Sachin, I was thinking for places like Mumbai. Yes. So, right now there's a very heavy construction of high rise going on in Yes, Mumbai. yes, yes. So, for example, अगर मान लो कोई ट्रिप करता है और वर्क एट हाइट पे वो काम कर रहा है एंड ही फॉल्स एंड ही इज हैंगिंग मिड एयर, तो क्या इंडिया में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू भी होता है? मतलब इज दैट इवन अ पॉसिबिलिटी? No, we don't have any helicopter rescue, but yes, that's why I told na rescue plan, because
ऐसी एक्टिविटी अगर समझो बहुत हाइट पे है, 15-20 बिल्डिंग्स, और इवन मुंबई में तो मोर देन 25, 30, 40, 45 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वहां पे उसको रेस्क्यू करने के लिए एक तो इमीडिएट मतलब स्कैफोल्डिंग वहां रहते ही है। दूसरा एक मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। Previously, I think you have done very good conversation with some वो मोबाइल एलिवेटेड प्लेटफॉर्म जो एक्चुअली उसको हाइट राइडर बोलते हैं। जो प्लेटफॉर्म पे हम ज्यादा हाइट है तो उसको एक्सेस करके इमीडिएटली पर्सन को उसमें लिफ्ट, मैन बास्केट टाइप रहता है, अच्छा। और मैन बास्केट में हम लोग उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें डिजाइन वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे होनी चाहिए, और ये चीजें उनके एक्टिविटी में भी होती है, बट बहुत जगह पे इवन ये सब चीजें हमने इंडस्ट्री में यूज किया है, बट आई डोंट थिंक इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो तो जो मटेरियल ऊपर ले जाने के लिए उसी को यूज करके कुछ करना पड़ेगा। और वहां की जो लोकल जो टीम है जो वहां पे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनसे ही सपोर्ट लेके ऐसी हाई एक्टिविटी में अगर कुछ होता है इमरजेंसी, तो वही उसके लिए इमरजेंसी प्रोसीजर प्लान, देन मॉक ड्रिल्स, प्रैक्टिस, मेन है प्रैक्टिस। ये सब बनाने के बाद जो उसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए कि अगर एक्चुअल में सही हो गया, लटक कोई आदमी ऐसा लटक गया तो उसको कैसे उतारेंगे। तो जनरली होता क्या है कि हम लोग मॉक ड्रिल वो सब करते हैं, तो उसके लिए एक्चुअली मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा लाइव आदमी को यूज करने की जगह उसका डमी हम लोग यूज कर सके, डमी। Even when in India we are using actual human, but when I was in Gulf, so we are not allowed to use any human for the rescue. Like even अगर उसको स्ट्रेचर में बिठा के भी ले जाना है तो भी डमी ही यूज करना है। वो डमी अप्रॉक्स 80-90 kg का वेट का रहता है, तो ऐसा डमी ही यूज करना है। कोई भी अगर ड्रिल के दौरान अगर समझो कोई आदमी को कोई चोट लग गई, तो अगेन वो फर्स्ट एड इंसिडेंट स्टेटिस्टिक और साइट का जो सेफ्टी स्टेटिस्टिक है वो खराब हो जाएगा। इसलिए मॉक ड्रिल में भी हम नहीं यूज करते, बट जनरली इन इंडिया में तो हम लोग लाइव ही मॉक ड्रिल करते हैं। Okay. So, moving forward, why do you think height-related incidents still occur despite we talk of proper procedures and there's so much training, there's compliance, but there's still accidents, right? So, what is lacking? So main, there are procedure, SOPs, training, everything is there, but sometimes it's only just for the checklist, means खाना पूर्ति के लिए हम लोग उसको कर देते हैं। आदमी लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, 2 घंटा ट्रेनिंग अटेंड भी करके आते हैं, बट वो 2 घंटे में ट्रेनिंग होने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग में क्या सीखा, what they have learned, that has to be evaluated by their routine activity and how they are working. So वो चीजें का रेगुलरली अगर वहां पे साइट पे वॉक थ्रू साइट लीडर्स अगर करते हैं, जो भी सेफ्टी की टीम है अगर वो करते हैं, तो उनको वो भी देखना है कि जो ट्रेनिंग में उनको जो दिया था उससे कुछ उनकी वर्क एक्टिविटी और जो उनका बिहेवियर है उसमें कुछ चेंजेस आया है। सेफ्टी पहले कैसा फॉलो करते थे, ट्रेनिंग के बाद वो लोग कैसा फॉलो करते हैं, वो भी एक हमको चेक करना पड़ेगा। इवेल्युएशन उसका भी होना चाहिए कि अगर ट्रेनिंग के बाद भी अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी क्या होता है ना कि जो ट्रेनर है तो लैंग्वेज बैरियर रहता है, और बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दे आर नॉट लिटरेट, मतलब उतना कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो रहते हैं वो, तो थोड़ा लैंग्वेज वो भी समझना चाहिए कि सामने जो लोग है उसको वो बराबर समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो वैसे ट्रेनर होने चाहिए। तो ट्रेनिंग देने के बाद ही वो लोग कितना समझे वो भी हमको देखना पड़ेगा कि अंडरस्टैंडिंग कितना है। अगर कंटिन्यूअसली वो अगर समझ नहीं पा रहे तो कुछ दूसरा तरीका ट्रेनिंग का सोचना चाहिए। विजिबल ऐसा वर्बल ट्रेनिंग की जगह फिर उनको कुछ पिक्टोरियल वीडियोस ऐसा कुछ ट्रेनिंग, कभी कभी क्या होता है ना, आदमी जितना खुद पढ़ के और सुन के जितना कैप्चर करता है उसकी जगह ज्यादा विजुअलाइज, जैसे कुछ देख के हमको जितना याद रहता है, विजुअलाइज हम लोग कर पाते हैं ना, वो ज्यादा रहता है। तो ये जरूरी है कि मेथड ऑफ ट्रेनिंग अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, वो अभी आजकल वो VR ग्लासेस की एक्चुअल ट्रेनिंग आई है,
तो वो भी एक ट्रेनिंग उसमें ऐड कर सकते हैं। देन दूसरा कि जो लीडर्स का कमिटमेंट है वो भी जरूरी है कि इंस्पेक्शन करने के बाद अगर जो साइट पे रूटीन इंस्पेक्शन होता है, वॉक थ्रू होते हैं, तो उसमें भी कि देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हैजर्ड्स की प्रोबेबिलिटी है, वहां पे कंट्रोल मेजर्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं, और इमीडिएटली अगर हाई रिस्क है तो वो लेने चाहिए। और हर बार प्रोजेक्ट्स का टारगेट कंप्लीशन डेट की जगह उसमें सेफ्टी में भी कुछ होना चाहिए। मतलब अगर ठीक है थोड़ा काम डिले होता है तो होने होने दो, बट सेफ्टी के साथ होना चाहिए। Right. Like work to be completed with the least fatalities or zero विद fatality, ऐसा होना चाहिए। जीरो फेटल, यस, Yes, परफेक्ट। yes. Okay, so Sachin, let's talk about the leaders. So, what role does leadership play in promoting safe work practices at height and influencing worker behavior? सो लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, मीन्स व्हेन लीडर्स साइट पे है जाते हैं तो उनको खुद भी जो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना चाहिए। I can say one example. When I was in one company in Middle East, so we have the protocol like when we are using the scaffolding ladder or means any staircase, so we are not supposed to use our walkie-talkie, or we cannot talk on mobile phone. So when we were also on site, so we have to ensure that we cannot use walkie-talkie, because if we are also using the walkie-talkie and moving on staircase, then people are noticing, so they can think if safety person is not following, then why we have to follow, means they are also bypassing. तो लीडर जितने होए उनको भी इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वॉकी टॉकी है तो मल्टीपल कॉल्स और वो सब आते रहते हैं। तो वो देखना पड़ता है कि अगर कोई मतलब अगर सीढ़ी में भी जाते हैं तो वो अवॉइड ही करते हैं, मतलब नहीं ही लेते हैं। और अगर गलती से भी अगर लिया है तो देखना पड़ता है कि आजू बाजू में क्या है, नहीं तो वहां पे सिस्टम ऐसी थी कि सेफ्टी कार्ड आ जाते हैं, तो अगर सेफ्टी ऑफिसर अगर उसने कुछ वायोलेशन किया है तो इमिडिएटली सेफ्टी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन आती थी। वहां पे एक सिस्टम था ऐसा। Then leader has to be counsel, means they have to observe activity, and if they find any hazards, so they have to discuss with the workers, means what are their constraint, why they are not following, and they have to inform him the safe practice, how they can do the safely work and safe। और ऐसा कन्वर्जेशन करके उसको समझाना चाहिए कि वो सेफली कैसे कर सकता है। अगर वो गलत करता है तो उसका रीजन क्या है वो भी जानना चाहिए, और जानने के बाद उसको काउंसलिंग करके समझाना चाहिए, ना कि पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। और काउंसलिंग करके उसको एक्सप्लेन करके उसको भी एग्रीमेंट में लाना चाहिए कि अगर वो अनसेफ करेगा तो क्या होगा और सेफ करने से क्या फायदा है। तो ये हेल्दी डिस्कशन होगा वर्कर्स और लीडर्स के बीच में। तो वर्कर्स उनको भी लगेगा कि ऑल हमारे लीडर्स हमारे बारे में बहुत ध्यान रखते हैं और पूरा उनका सपोर्ट है सेफ्टी को फॉलो करने के लिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा टीम में। तो लीडर्स का एक रोल है कि उनको ये भी ध्यान रखना है। देन सेफ्टी प्रमोशंस, सेफ्टी अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, अगर कोई सेफली अच्छे से काम करता है तो उसको रिकॉग्नाइज करना ड्यूरिंग द लीडरशिप वॉक थ्रू, एक ये भी पॉजिटिव मैसेज है, दे सकता है पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। राइट। सो सचिन, मैं सोच रहा था कि मान लो आई एम अ वेरी लाइक स्मॉल वर्कर इन अ फैक्ट्री और आप हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो आप आते हैं फैक्ट्री में घूमने, बट आपने हेलमेट नहीं पहना है, एंड आई एम नोटिसिंग इट, एंड मुझे लग रहा है यार ये गलत है, आई शुड टेल यू दैट यू शुड वेयर अ हेलमेट, बट बिकॉज आप एक वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड आई एम अ वर्कर, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ वो चीज, तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? देन सेफ्टी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर एक का है। तो अगर वो समझो आपने भी बोला कि आपका हेलमेट सर आपने नहीं पहना है, तो मुझे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, या मुझे भी लगना चाहिए कि अरे हाँ गलती हो गई, सो आई हैव टू एक्सेप्ट माय मिस्टेक,
तो ऐसा मैसेज पॉजिटिवली उनको लगेगा। मतलब सेफ्टी, मैं वही पहले बताया ना, पनिशमेंट अगर नहीं देंगे, पॉजिटिव सेफ्टी का स्टॉप वर्क, अगर कुछ अनसेफ देखा तो कोई भी उसको स्टॉप कर सकता है। तो ऐसा अगर कोई अगर ऐसा हो, अगर किसी ने भी अनसेफ देखा तो कोई भी उसको बता सकता है। ये होना चाहिए पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के लिए। राइट राइट राइट। तो ये लाइक कल्चर, पॉजिटिव कल्चर बिल्डअप वाला फैक्टर है इसमें। यस यस यस। सो नेक्स्ट, हाउ डू ISO standards and safety audits contribute to strengthening work at height safety systems? ISO 45001, this occupational health and safety management system standard, it gives the framework and leadership commitment, risk-based thinking, then competence, performance evaluation and continual improvement. ये सब चीजें ISO 45000 में दिया है और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑडिट्स इंटरनल और एक्सटर्नल होना चाहिए, और ऑडिट नॉट ओनली फॉर द कॉम्प्लायंस, ऑडिट कैन बी मूव टू कंप्लायंस टू द परफॉर्मेंस। मतलब कॉम्प्लायंस भी चेक करना है और परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करना है। जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करके उसके करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट करने हैं। तो ये ऑडिट जो सिस्टम बनाई है वो हमको बेनिफिट होगी। देन स्टैंडर्ड्स हमको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं बेंचमार्किंग के लिए, बट एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। ताकि बहुत बार क्या होता है कि प्रोसीजर सिस्टम वो सब होता है, बट फिर एक्चुअल अगर इम्प्लीमेंटेशन देखे तो वो नहीं होता है। और ये इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। So every safety responsibility driven from top to the down, not down to the top. तो ये एनफोर्समेंट होना चाहिए फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। तो वो डाउन टर्न लाइन ऑटोमेटिकली वो आएगा ही आएगा। देन दिस सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीवन, एवरी सप्लायर्स who are visiting the sites, everyone has to be responsibility for the safety. Then project planning, तो ये सिस्टम और प्रोसीजर वो सब बनाने के बाद उसका प्लानिंग भी जरूरी है। प्लानिंग अगर अच्छे से करेंगे तो सेफली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे विद द जीरो इंसिडेंट, जीरो हार्म। राइट। सो सचिन, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि if there is a project, construction project done by the government and construction project done by a private company, तो इनके compliance के standards same होता है या कुछ कुछ difference होता है इसमें? See, the legal compliance has to be made by the governments, but if we can just you can see the how the municipality work are going on. Means they wants everyone to follow the system, but they are not 100% following the systems. अगर खड्डे, अपना म्यूनिसिपालिटी की बात करें तो रोड पे जब खड्डे होते हैं, कुछ एक्सकेवेशन चलता है, तो गवर्नमेंट का रूल्स है ना, इंडस्ट्री के लिए तो बहुत सारे रूल्स है। अगर एक्सकेवेशन करते हैं तो उसका 45 डिग्री स्लोप होना चाहिए, लूज सोल है तो सोरिंग होना चाहिए, अगर और हार्ड बैरिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इंडस्ट्री में फॉलो करने के लिए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और करते भी है। बट अगर सिमिलरली कॉर्पोरेशन की बात करें तो बहुत सारे एक्टिविटी चलती रहती है। वो ओवर ब्रिज के काम चलता है, ठीक है, नीचे से गाड़ियां भी जा रही है। इवन आपने सुना होगा बहुत सारे कुछ ब्रिज कोलैप्स हो गया, नीचे ट्रैफिक में बहुत सारे लोग फैटल भी हो गए, इंजर हुई। तो ये सब गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस है, बट वो लोग खुद ही इतना इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे मैंने बोला लीड बाय एग्जांपल, तो अगर गवर्नमेंट उनके ही प्रोजेक्ट्स में अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करे तो सब लोग ऑटोमेटिकली करेंगे। तो प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में लोग करते ही है 80-90%, तो वहां पे कॉम्प्लायंस उनको भी रखना है, नहीं तो गवर्नमेंट्स की पेनल्टी, फाइन्स और ये सब होता है। बट गवर्नमेंट खुद ही उसमें उनको भी देखना चाहिए कि वो लोग भी कैसे उसको 100% इम्प्लीमेंट कर सकते। आजकल अभी अभी थोड़ा हुआ है, बट वो क्या है कि पूरा अगर नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना गवर्नमेंट का, तो उसमें होता है।
बट जैसे इन बिटवीन जैसे कॉरपोरेशन और उसका रिनोवेशन और एग्जिस्टिंग उसमें कुछ चलता है, उसमें थोड़ी गैप रहती ओके ओके। और सचिन, कंपेयर दिस टू दुबई, जहाँ पे है। पेनल्टी और फेटालिटी का तो बहुत ज्यादा यस महत्व है, यस राइट? इट्स वेरी सिवियर। तो वहां यस पे कैसा रहता है? Dubai, it's means they are having equal real responsibility. Means government are also having the same rules and regulations what private industry has to be follow. So वहाँ पे वैसा अपने जैसा थोड़ा करप्शन और ये सब नहीं है वहाँ पे। तो अपने यहाँ एक वो भी चीज है कि करप्शन भी एक है, उसको भी कंट्रोल वो वहां पे जनरली ये सब चीजें है कि वहां पे फॉलो करना ही है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स हो या प्राइवेट के प्रोजेक्ट्स हो, वहां पे तो बहुत स्ट्रिंजन, इवन रिक्वायरमेंट ऐसी स्ट्रिंजन है ना, इसलिए फॉलो करनी ही करनी है। राइट राइट राइट। ठीक है, हाँ, मेक सेंस। तो मूविंग फॉरवर्ड, in industries like chemical manufacturing, यस यस what unique challenges exist for ensuring safety while working at height? in chemical industry, the corrosive and flammable material atmosphere. So, and another is restricted access, like complex design of pipework, then decontaminations, then permit and isolations. केमिकल इंडस्ट्री में क्या है कि एक तो वहां पे फॉल प्रोटेक्शन का भी प्रोविजन इतना मतलब करना पड़ता है एक्टिविटी करने से पहले। देन प्लांट की जो डिजाइन और ये सब है, पाइपिंग जो जाती है, तो उसमें भी एक्सेस और उसमें प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सब चीज में हाइट, वर्किंग एट हाइट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट उसको भी मैनेज करके एक्टिविटी की जाती है। देन हाइट पे अगर वहां पे काम है तो हमको वो भी देखना है कि जो टॉक्सिक वेपर्स एंड फ्लेमेबल वेपर्स, अगर कुछ एक्टिविटी चल रही है वहां पे, समझो कुछ लाइन लीकेज हो गई, तो इमीडिएटली वहां पे कुछ एक्सपोजर होके वहां पे वो कुछ दूसरा इमरजेंसी ना हो जाए, वो भी एक इंश्योर करना पड़ता है। देन ऑल्सो द यूज ऑफ इक्विपमेंट लाइक स्पार्क प्रूफ, अगर फ्लैमेबल एरिया में काम है तो सेफ्टी हार्नेस और वो सब जो यूज करते हैं, तो वो थोड़ा देखना पड़ता है कि कुछ उससे कुछ यूज करने से कुछ स्पार्क ना हो जाए, और अगर स्पार्क हो गया तो फिर फायर की पॉसिबिलिटी हो सकती। तो एक चीज है। देन वो हार्नेस पहनना, और केमिकल एटमॉस्फेयर है तो एक तो पीवीसी सूट भी पहन, केमिकल सूट, प्रोटेक्टिव सूट भी पहनना पड़ता है। देन सेफ्टी हार्नेस यूज करना पड़ता है। देन अगर वहां पे कुछ केमिकल्स की पॉसिबिलिटी, जो पीपीई जो यूज किया हुआ है उसमें कुछ वियर एंड टीयर ना हो जाए, वो भी ध्यान रखना है, नहीं तो जो पहना हुआ पीपीई है वही खराब हो गया। समझो हाइट का जो अपना बेल्ट पहना हुआ है, हाइट सेफ्टी हार्नेस पहना हुआ है, अगर उसमें कुछ केमिकल कंटामिनेशन हो गया और वही टूट गया और इमीडिएटली कुछ फॉल हुआ, तो उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे, और जो यूज हार्नेस जिसके लिए हमने यूज किया था उसका इंटेंशन हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। केमिकल कोरोसिव वियर एंड टीयर हो गया तो वो टूट जाएगा। तो ऐसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन आती है, बट सेफली केमिकल इंडस्ट्री में भी सेफली बहुत सारी एक्टिव हाइट वर्क की होती है। तो प्रॉपर प्लानिंग, जीएसए, देन ट्रेनिंग्स, टीबीटी, टूलबॉक्स मीटिंग्स, ये सब करके उसको सेफली कर सकते हैं उसमें भी। ओके, तो बेसिकली चैलेंजेस लाइक काइंड ऑफ डबल हो जाते हैं केमिकल यस यस मैन्युफैक्चरिंग में। यस और सचिन, आई वाज थिंकिंग वन मोर थिंग के मान लो एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इज देयर अ रेडियस तक कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी रिस्क? हाँ, अभी जैसे सिटी की हम बात करें, जैसे अहमदाबाद सिटी है गुजरात में, तो पहले ऐसा था कि अहमदाबाद से जो अभी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया पहले दूर था, बट अभी एज पर करंट सिचुएशन जो सिटी का एरिया ही इतना डेवलप, कंस्ट्रक्शन होते 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 चला गया कि वो जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में हो गया। जैसा एक एलजी पॉलीमर का इंसिडेंट शायद आपको याद होगा, तो उसमें जो हुआ था, तो उधर गैस लीकेज होने से गैस लीकेज बाहर आया और उस सराउंडिंग में जो पॉपुलेशन था उनको अफेक्ट किया, बहुत सारे लोग हो गए थे ना उधर। तो ऐसा इंसिडेंट ना हो इसीलिए
केमिकल इंडस्ट्री को रेसिडेंशियल एरिया के वहां पे परमिशन पहले तो देते ही नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नहीं मिलता है। बट अभी अभी क्या है कि वो इंडस्ट्री समझो 25-30 साल से है, और 25-30 सालों में कंस्ट्रक्शन होते होते नियर अबाउट इंडस्ट्री आ गया, तो अभी वो इंडस्ट्री को भी वहां से शिफ्ट करना, वो भी एक गवर्नमेंट के लिए थोड़ा चैलेंज है। बट धीरे धीरे वो भी कर रहे हैं। अहमदाबाद में ही अगर देखे तो बहुत सारी पहले केमिकल इंडस्ट्री थी, तो चलते लास्ट 10 इयर्स में बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री वहां से गवर्नमेंट ने उनको बंद करने का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री बंद भी हो गई है, और उन्होंने उनकी इंडस्ट्री दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दी है। तो ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो फिर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में अगर है तो जैसे भोपाल इंसिडेंट, मेजर नो वन टू एवरीवन, ऐसे हादसे होने में फिर देरी नहीं होती, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में कुछ अगर गैस लीकेज हुआ, टॉक्सिक है, तो ऐसे मेजर फैटालिटी भी हो ही सकती है। तो इसीलिए रीजन है कि केमिकल इंडस्ट्री जहाँ पे है वहां पे इतने रेसिडेंशियल की परमिशन नहीं दे, वहां पे इंडस्ट्री रेसिडेंशियल एरिया के नजदीक में नहीं होती है। हाँ, लेकिन लाइक यू सेड राइट, हमने दूर बनाई हाँ। थी, बट देन गवर्नमेंट शुड मेंटेन कि भाई इसके पास ना आने दो, राइट? दैट्स अ यस जॉब ऑफ अ यस। गवर्नमेंट, राइट? तो दैट्स वाई अभी उनकी जो ओके परमिशन ओके है वो ओके अभी गवर्नमेंट नहीं, रिन्यूअल जो है परमिशन वो नहीं करते हैं ना। उनको ऑलरेडी 5 साल बता दिया है कि भाई आप शिफ्ट कर लो यहाँ से। ओके ओके ओके, ठीक है। So, moving forward to the technology part, so like you mentioned, AR and VR is coming up. So, how do you see technology such as AI monitoring, connected PPE, or digital permits shaping the future of work at height safety? कनेक्टेड पीपीएस में मैंने विन माय पास्ट ऑर्गेनाइजेशन वी हैव एआई कैमरा इंटीग्रेटेड टू आइडेंटिफाई हेलमेट्स एंड गॉगल्स एंड वॉकवे। तो ये सब चीजें कैमरा में इंटीग्रेटेड थी, और जहां पे भी वायोलेशन होता है तो कैमरा इमीडिएटली कैप्चर करके वो अलार्म दे देते थे, तो उसका फोटो कैप्चर करके आ जाता था। बट वो चीजें एआई में है अवेलेबल, और उसमें भी हमको आइडेंटिफाई करना है कि कितने अलार्म फॉल्स है और कितने राइट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हेलमेट हमने 2-3-5 सेकंड 10 सेकंड के लिए निकाला, बट उसमें कैमरा में कैप्चर हो जाता है। तो वो आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्चुअली कहाँ कौन सी कंडीशन में उसने, क्योंकि फिर उसका पूरा वीडियो देखना पड़ता है वो टाइम के साथ में, और वो आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल अलार्म था या फॉल्स अलार्म था। तो वैसे हम लोग एक्चुअल अलार्म आइडेंटिफाई करके जो जो यूजर्स मतलब जो कैमरे में कैप्चर हुए हैं वो पर्सन को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेनिंग काउंसलिंग करते थे। ठीक है। तो वहां पे क्या था कि ऑल पर्सन का RFID आइडेंटिफिकेशन नहीं था, तो हमको कैमरे में पिक्चर देख के ही उसको आइडेंटिफाई करना था। तो AI टेक्नोलॉजी में अभी है RFID और वो सब प्रोविजन, तो इंडिविजुअल अगर किसी भी पर्सन को ट्रैक करना है तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, और उसको फिर इवेल्युएशन करना पड़ेगा, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी वो सब है, बट उसका एक्चुअल हम लोग को क्या उससे मिलता है कि वो कितना सही है कितना गलत है, वो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। ठीक है। देन हेल्थ कंडीशंस, एक AI में एक भी है ना, हेल्थ कंडीशन को भी मॉनिटर करने का प्रोविजन है। तो अगर सुबह में जब आते हैं और हाइट की एक्टिविटी है, तो पर्टिकुलरली AI हम वी कैन गिव AI कैन गिव द अलार्म में, अगर इसका हेल्थ कंडीशन सही नहीं है तो उसको फिर हम लोग हाइट पे नहीं भेजे, तो एक सेफ साइडली वो एक बेनिफिट्स है। देन डिजिटल परमिट से हमको एक्टिविटी मॉनिटरिंग भी होगा, और उसमें कितने रिस्क ज्यादा है कहाँ कहाँ पे वो भी है, वो भी आइडेंटिफाई होगा, और परमिट्स में कितने लोग इन्वॉल्व है वो भी कर सकते हैं। आइसोलेशन कहाँ कहाँ पे जरूरी है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन वो सब होने के बाद ऑडिट्स में इजी रहता है कि डिजिटल डेटा अगर हमारे पास है तो वो हम लोग ऑडिट्स और उसमें इजीली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद डिजिटल डेटा, उसके बाद हम लोग उसको इवेल्युएशन स्टैटिस्टिक एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कोई कौन सी एक्टिविटी में कहाँ पे उसका हाई रिस्क मतलब हाई रिस्क एक्टिविटी है, उसमें कहाँ पे ज्यादा वायोलेशंस होते हैं। उसके बेस के ऊपर हम लोग उसको कौन से ट्रेनिंग देना है वो इन्वॉल्व टीम को, वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो AI इज वेरी बेनिफिशियल फॉर गेटिंग आवर टास्क इजी। राइट।
ओके, बट सचिन, दैट इज ऑल गुड, बट आप मुझे ये बताओ कि क्या ये प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है इंडिया में, जिस प्राइस पॉइंट पे कंपनीज इसको यूज कर सो सकती हैं? इट्स वेरी कॉस्टली, तो वो भी है, इसीलिए तो इतने लोग ज्यादा एआई और उसमें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली है और लिमिटेशन भी है कि यूजर्स को भी पता होना चाहिए कैसे। बहुत सारी जगह पे लगा तो दिया है, बट उसको कैसे उसको यूज करना है वो भी सबका अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, और मेन क्या है ना, ओके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें हमको लॉन्ग टर्म में यूजेबल है, बट उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो इसीलिए हर कोई उसको इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहता है। जैसे टर्म प्लान है, टर्म प्लान हमारे लिए हम्म। अच्छा तो है, बट उसके लिए हमको प्रीमियम भी भरना पड़ेगा, और प्रीमियम थोड़ा हैवी भी, मतलब हाई भी है। तो इसीलिए भी टर्म प्लान बहुत सारे लोग नहीं भी लेना चाहते हैं। तो ओके ओके, राइट राइट, तो मतलब इट्स मोर लाइक अ फाइनेंशियल बिजनेस केस हाँ, प्रेजेंट करना पड़ेगा यस यस, टॉप मैनेजमेंट को, ताकि वो फंडिंग करेक्ट करें उस चीज करेक्ट। को। और टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट तो होना ही चाहिए, तभी तो सब चीजें कर सकते हैं। बाकी इंडिया में और बहुत सारी जगह पे टेक्नोलॉजीज की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजीज बहुत सारी है, बट उसके लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। यस 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 यस। तो, कभी कभार ऐसा होता है कि बॉस हम्म, बोल रहा है नो एआई इज गुड। सो गुड, एआई इज सो गुड, तो उन्होंने बोला कि हाँ, एआई लेके आओ, नो टू नो नो, टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। और दूसरा क्या है कि मैंने हम लोग पहले भी डिस्कस किया था कि सेफ्टी में आपको इन्वेस्टमेंट जो करोगे वो इजीली, आप मतलब जैसे कुछ प्लांट अगर डालोगे तो आपको आरओआई मिलेगा, बट सेफ्टी का इन्वेस्टमेंट आरओआई है, बट वो आपको उसको विजुअलाइज कब कर पाओगे, आपको कब है उसका पता पड़ेगा, जब कुछ एक्सीडेंट होने से आप खुद मैनेजमेंट भी रियलाइज कर सकता है। कि जैसे हमारे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था कि ऊपर से कुछ हाइट से गिरा था हेलमेट के ऊपर, और वो आदमी को कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम्म। साइड हेड का ऐसा, मतलब उनका ऐसा था कि अभी तक हमने जितने भी हेलमेट जो परचेज किए, उन सब का हमको सही समय पे उसका ये मिल गया, रिजल्ट मिला। तो ऐसा भी चीज है कि उसको राइट हम राइट उसका राइट राइट। आरओआई ऐसे गिन नहीं सकते, बट अगर एक्चुअल में जब कुछ इंसिडेंट ऐसे हमको लगेगा कि होते हुए तो सही में बच गया, तब हमको उसका इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ेगा। तो राइट राइट सेफ्टी, राइट। या मतलब काफी मतलब खराब बात है कि इसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखने के लिए हाँ आपको किसी मतलब को हर्ट वही करना है, मतलब पड़ेगा। ऐसा हर्ट करके करना नहीं है, बट ऐसा एक्चुअल हो जाता है तब रियलाइज होता है ना, कि हमने जैसे आ, हम लोग हेलमेट नहीं पहनते, बट अगर कोई आदमी गिरता है तो उसको तो रियलाइज होता है ना कि आज हेलमेट मैंने पहना, गिरा तो अच्छा हुआ कि कुछ चोट नहीं लगी। बट हेलमेट पहनाने के लिए भी कितना वो करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन, पेनल्टी, फाइन राइट। सब है, बट फिर भी रोड के ऊपर हेलमेट नहीं पहनते। तो ये चीज है। ट्रू ट्रू, सही बात है सचिन। सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है तो 100% मिलता ही मिलता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कोई इंसिडेंट ना हो साल में, दैट इज द रिटर्न ऑन यस, इन्वेस्टमेंट फॉर दिस सेफ्टी। इज, यस यस। Okay. So, finally, last question. What message would you like to leave with safety professionals and industry leaders striving to achieve a true zero harm culture? To zero harm, leadership commitment, then for 100% implementation of procedures and system, not only for the checklist, Mm-hmm. not only for the tick marks, वो जो सिस्टम प्रोसीजर बनाई है उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको सही करना चाहिए। देन एक है कि ह्यूमन सेंटर सेफ्टी, मतलब आदमी को सेंटर में रखते हुए सेफ्टी कल्चर डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अगर अगर कोई आदमी जो है ह्यूमन, अगर समझो कोई किसी घर से जो आता है, अगर उसको कुछ फैटालिटी हो गई तो वापस वो घर नहीं जाएगा। तो वो Mm-hmm. पर्सन, हम लोग कितना भी उसको उसको फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी देंगे, बट वो पर्सन को जो मिसिंग है उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम जरूरी है जीरो हार्म सेफ्टी कल्चर के लिए। देन लीडरशिप कमिटमेंट, देन नो पनिशमेंट। अगर Mm-hmm. लीडर्स ने भी कुछ आइडेंटिफाई हुआ तो किसी को पनिश नहीं करना है। Mm-hmm. ठीक है, देन कंटिन्यूअल ऑडिटिंग एंड इम्प्रूवमेंट्स,
कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, लेसन लर्न, शेयरिंग, कुछ भी अगर होता है तो हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए विद इन द टीम। और कुछ दूसरे भी जो इंसिडेंट है उसके लेसन लर्न शेयर करना चाहिए। तो ये सब चीजें करने से हम लोग जीरो हार्म सेफ्टी कल्चर्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, very nice. Thank you, Sachin, for sharing your insights and experiences यस on यस on what it truly means to create a culture of safety when working at height. This conversation is a powerful reminder that compliance alone isn't enough. Safety must become a shared value embedded in everyday actions. For every organization, every supervisor, and every worker, the goal remains the same: ensure that everyone who goes up comes back down safely. Thank you for tuning in to the Hack Lab podcast. Stay aware, stay committed, and continue to build a world where zero harm is not just a vision, but a way of working, and I would say a way of living. So, thank you and have a nice day. Bye bye. थैंक्स, थैंक्स अंबर।